हमने 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। हमारी परंपरा के अनुसार हमने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वो दिया अभी तक जल रहा है और ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ हमने उसको जला के भी रखा है। तो इसलिए हम हमारे माननीय अतिथियों का अभी स्वागत करना चाहेंगे शुरुआत कार्यक्रम की। और मैं निवेदन करूंगा श्री कमल सिंह अंजना जी से, मालवा प्रांत, कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री दत्ता जी होसबड़े जी, सरकारी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका स्वागत करें। मैं हरपाल जी सिंह से, अध्यक्ष दिल्ली प्रांत से, अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सेक्रेटरी डेयर और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इनका स्वागत करें। नहीं सर, पुष्प गुच्छ मैं श्री राज सिंह उत्तर प्रदेश इनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, डीडीजी एजुकेशन, आईसीआर, इनका स्वागत करेंगे। मैं बलिराज सोलंकी जी, महाराष्ट्र प्रांत से, उनको अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण जी का स्वागत करेंगे। श्री सर्वजीत सिंह, बिहार प्रांत, सर्वजीत सिंह, बिहार प्रांत, इनको अनुरोध है सामने। सर्वजीत सिंह जी, अनुरोध है कि डॉक्टर जलपति राव जी का स्वागत करेंगे। आशीष सरकार जी, बंगाल प्रांत, आशीष सरकार जी, बंगाल प्रांत से, इनसे अनुरोध है कि माननीय प्रमोद जी का स्वागत करेंगे। और सतीश जी से, हरियाणा प्रांत, सतीश जी से अनुरोध है कि डॉक्टर मकरंद जी करकरे का स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर जलपति राव, प्रेसिडेंट भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर से अनुरोध करूंगा कि आज के गणमान्य अतिथियों का स्वागत पर भाषण करेंगे। सबका नमस्कार। After serious discussion for the last 2 days on the international conference and the harnessing of Indian agriculture, we have come to the conclusion and valedictory function with chief guests and participation. So I welcome the honorable guests on the dais and also all the delegates, media, and friends. And the beginning, I would like to welcome Sri Dattatreya Hosbale, Sarkari va Rashtriya Swayamsevak Sangh. Thank you very much, sir, for making your presence here. And I think Dr. Ms. Hosbale is always here for the last 2 days. I think watched everything and came to know everything what has been discussed. So it will be helpful for us that you will be definitely giving your thoughts on the discussion that we have made in the last 2 days. And I welcome our though the collaborator of this entire program and is a backbone for entire this seminar
the Director General of ICR, Sri Trilochan Mahapatra ji. Thank you very much, sir, because of your cooperation and all type of advice and everything, and our facilities extended for all the delegates in personally and also for organizing this meeting. Thank you very much, sir. I also welcome the Deputy Director General R.C. Agarwal ji for your entire cooperation, also chairing the sessions and guiding all through the entire seminar in the last 2 days. I welcome Sri Badrinaran Chaudhary ji, the President of Bharatiya Kisan Sangh. Despite some ill health in the few months last week, but he has made his presence felt, and with vast experience in organizing the Kisan Sangh for so and so, his thoughts and his advice for the entire audience and delegates will be more useful. Thank you very much, Badrinaran ji. I welcome the Pramod Chaudhary ji, the Secretary, and the entire was an active participant for in organizing this seminar with his group. I welcome. I think Ralo also chaired the session and given his inputs. And I welcome Dr. Makarand Karkare after retirement and giving a lot of time for this Bharatiya Agroeconomic Research Center and Kisan Sangh. And he was the active for all through in the organizing this seminar and interacting with the delegates and maintaining congenial atmosphere for all the participants here. So I also welcome all the delegates, both from abroad and as well as from India, various states, and also welcome the media for this valedictory function of so and so. So this again, I extend all the welcome to all the participants for this valedictory function of this. Thank you. और व्यास है ने ज्ञान के प्रतीक। व्यासपीठ से जो बात हो जाती है वह ज्ञान होता है। यहाँ पर से जो कही गई बात है वह ज्ञान की बातें कही गई, और उन सभी बातों का मर्म था भारत का देश को एवं विदेश को प्रदान गत 75 वर्ष में। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ये जैसे विषय रखा तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में इसकी दिशा क्या होगी, किस प्रकार से हम इसको करेंगे। मन में विश्वास था, किंतु एक फिर भी मन में जो ये रहता है, दुविधा रहती है। इसकी तैयारियां हमने शुरू की थी नवंबर-दिसंबर से, और आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कल जब हम प्रारंभ किया तो भारत के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। उन्होंने कृषि विकास की दृष्टि से कुछ बातें कही, और उनके पश्चात श्रीमान मनीष गोबिंद, जो हमारे अतिथि थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कृषि मंत्री एवं कायदा मंत्री, उन्होंने भी काफ़ी बातें कही। उन्होंने ये संबोधन में कहता हुआ कि हमारा खून का रिश्ता है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी में बोल नहीं सकता, अंग्रेजी में बोलूँगा चलेगा। मैंने कहा आप हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। और कल यहाँ जैसे खड़े हुए तो पूरा भाषण उन्होंने हिंदी में ही किया। ये होती है आत्मीयता की शक्ति। उसके पश्चात भारत के रत्न पद्मश्री रतनलाल उम्र के कारण प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, किंतु उन्होंने अपना भाषण भेजा था, और भाषण भी सटीक पूरी बातें थी।
कि 75 वर्ष में कैसे कैसे हम धीमे धीमे प्रगति करते करते याचक से दाता बन गए, इसकी पूरी तस्वीर उन्होंने हमको बताई। और उसी सत्र में हमने जो विविध विषयों पर 30 स्तरीय निबंध स्पर्धा रखी थी, उसके विजेताओं को सम्मानित किया गया। पहले तकनीकी सेशन में विषय था अन्न सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता, फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ सस्टेनेंस, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर TR शर्मा, उपाध्यक्ष थे सुधांशु सिंह और रिपोर्ट थे मल्लिकार्जुन हरसूर। इसके लिए डॉक्टर चैनिंग आर्डेंट, डायरेक्टर ऑफ द एनवायरमेंटल एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिवीजन, IFRI, वॉशिंगटन, इनके द्वारा नामित भाषण हुआ। ग्लोबल ब्रेड बास्केट्स, ग्लोबल शॉक्स एंड इंडियाज रोल इन इवॉल्विंग फूड सिस्टम। फिर डॉक्टर PK जोशी, जो पुराने शिक्षाविद हैं और जिनका अपना अच्छा अभ्यास है, सन्निष्ठ अध्यापक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, उनका भाषण हुआ। ग्लोबल सक्सेस स्टोरी फ्रॉम डेफिसिट टू एक्सपोर्ट्स, अछत से उन्नति की ओर, अछत से निर्यात तक, यह उनका विषय था। फिर हरवीर सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कृषि में नीतिगत तथा तकनीकी नवाचार की जरूरत, इस विषय पर भाषण दिया। और पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी ने खेती का समाधानात्मक विकल्प, इस पर भाषण दिया। दूसरे सत्र में उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BN त्रिपाठी, उपाध्यक्ष थे सोमदेव जी, और जिसका संकलन किया डॉक्टर R शिवरामकृष्णन जी ने। डॉक्टर बालाजी आगलावे भारतीय आप्रवासी हैं, गत 13 वर्ष से वहां पर काम कर रहे हैं विदेश में। उनका भाषण बड़ा रोचक रहा। बालाजी के बारे में कह सकूंगा कि 5 दिन पहले हमने उनसे बातचीत की, दूसरे दिन उन्होंने टिकट निकाली और 3 स्थानों पर विमान बदलते बदलते यहाँ आए। यहाँ आने के बाद आते आते बीच में उनकी कपड़े की बैग कहीं मिस हो गई, क्योंकि 2 फ्लाइट्स के बीच में 40 मिनट का अंतर था। यहाँ आने के बाद नए कपड़े लिए और नए कपड़े पहनकर यहाँ आए थे। फिर स्वदेश मुकुल संतरा जी अपने साथ हैं ही यहाँ पर। वे पूरे परिवार के साथ आए थे, लेकिन उनको यूँ लगा शायद कि मेरे परिवार की पूरी यहाँ परवरिश हो सकेगी कि या नहीं, या परिवार को अपने घर के साथ मिदनापुर में रखना चाहते थे। इसलिए आज उनके परिवार के लोग उनके साथ ज्वाइन होंगे और ये लोग कश्मीर घूमने जाएंगे। फिर तो उनका भी बहुत अच्छा भाषण हुआ। उन्होंने भी हिंदी में प्रस्तुति दी। आप डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी सेंट्रल फ्लोरिडा के हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक पार्टनरशिप, ये उनका विषय था। फिर तरुण जी बजाज, डायरेक्टर अपिडा, उनका भी बहुत अच्छा भाषण हुआ कि कैसे कैसे हम अपने जो कृषि उत्पाद हैं उनको आगे भेज सकते हैं सफलतापूर्वक, और हम कैसे और सक्षम बन सकते हैं। डॉक्टर प्रभाकर राव, जो नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वे यहाँ पर आए थे और खुद स्वतः उद्योजक भी हैं। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा भाषण दिया। फिर सुधा मैसूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीनोवेट इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन अंडर नेर रोल, स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में संबोधित किया। फिर बाद के सत्र में जो युवा निबंध लेखक विजेता थे उनको सम्मानित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर RC अग्रवाल, प्रभात कुमार, डॉक्टर पडारिया, ये तीनों की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर हमने तो 4 वक्ता सुनिश्चित किए थे, लेकिन 6 वक्ताओं ने अपनी प्रस्तुति दी। 12 में से 6 वक्ताओं ने प्रस्तुति दी। उनमें उत्साह था कि हमारी सोच क्या है ये बताएं।
तो उसको देखते हुए ऐसा लगा कि आज का युवा भारत भी क्या सोचता है, किस प्रकार से सोचता है। जो हमारा उद्देश्य था कि हमारे युवा भारत के प्रतिनिधि खेती के बारे में एक आत्मसम्मान की भाव रखकर खेती में जाएं। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वैसे किसान का बेटा किसान ही बने, इतनी प्रतिष्ठा उसमें प्राप्त हो, इस प्रकार के उनके विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन एक बात उसमें ध्यान में आई कि पशुधन का विकास होगा तो खेती और अच्छी होगी, ये बात प्रबलता से उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, जो हम भी मानते हैं कि गो आधारित खेती की जो बात कर रहे हैं। आज के पहले सेशन में कृषि संबंधित कानून, वैसे विषय जो था विषय बड़ा उबाऊ लगता था पहले, किंतु फिर भी इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से श्री विजयपाल शर्मा जी ने रखा, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस सत्र के अध्यक्ष थे एडवोकेट प्रमोद जी चौधरी, जो हमारे महासचिव भी हैं। उपाध्यक्ष थे मराठे जी और रिपोर्टर थे रविंद्र सिंह। विजयपाल शर्मा जी ने रोल ऑफ प्राइस एंड नॉन प्राइस पॉलिसी, न्यूनतम मूल्य की जो बात करते हैं, इंटरवेंशंस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। फिर विलास जी सोनवणे, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं एग्रो इकोनॉमिक सेंटर के, उनके द्वारा एग्रीकल्चर लॉज एंड डेवलपमेंट, कृषि संबंधित विभिन्न खास करके महसूल से संबंधित, जमीन से संबंधित जो विविध जो कायदे कानून है उसके बारे में बातचीत की उन्होंने। सज्जन नारायण जी ने कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ लेबर कोड्स, इसके बारे में बातचीत की। और डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने डीडीजी एजुकेशन, इंडियन लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स, जो बायोडाइवर्सिटी का विषय बीच में आ रहा है और बाकी कृषि संबंधित विविध कानून लादने की जो बात चल रही है, उसके बारे में उन्होंने भारत की जो स्वतंत्रता है, सार्वभौमता थे, उसके बारे में बातचीत की। फिर सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक कायाकल्प, इस विषय पर सोसाइटल मेटामॉर्फोसिस, डॉक्टर बी.आर. कंबोज, को चेयरमैन थे प्रदीप लाल शर्मा, रिपोर्टर थे डॉक्टर अशोक कुमार। संजय सेठी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लांट बेस्ड फूड्स, उन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं सामिष आहार से जिस प्रकार से हमको प्रोटीन्स मिल सकते हैं, वैसे ही प्लांट से यानी इससे भी अपने वेजिटेरियन फूड से भी मिल सकते हैं। और उसके लिए इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों ने, युवा उद्यमियों ने कार्य प्रारंभ किया है और उसके साथ हम भी जुड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। फिर डॉक्टर आर.एस. सोढ़ी, अमूल के जो ये हैं चेयरमैन हैं, उनके द्वारा इकोनॉमिक मॉडल फॉर आत्मनिर्भर भारत कि अमूल की जो अमूल का जो कार्य हुआ, कैसे हुआ और अभी भी क्या हो सकता है, उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने काफी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उसके पश्चात डॉक्टर सुनील परिक, निफ्टेम के अध्यापक थे, उन्होंने प्रेसिडेंसी इंडिया G20 नेशंस 2022-23 सेटिंग ऑफ एजेंडा, और साथ ही 2033 में आगे चलकर या उसके पश्चात जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हम मनाएंगे, तब उसका रोड मैप कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब भारत अध्यक्ष बनने जा रहा है G20 का, तो उस समय कैसे हमने क्या क्या बातों का ध्यान रखकर, भारत का हित ध्यान में रखकर आगे चलना चाहिए। फिर अंतिम सत्र जो हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, डॉक्टर एस के चतुर्वेदी, को चेयरमैन वाईपी सिंह, रिपोर्टर डॉक्टर सुभाष शर्मा। अपने यहाँ पर वियतनाम से पधारे स्वनामधन्य ऐसे विशेषज्ञ मिस्टर बूचीबू, was ex DG CLLRI and who is the alumni of this institute. He was very happy to join with us. He has also worked for many years at Orissa. When we talked with him, he said that I can speak Odia, but I cannot, and he understand Hindi a bit, but I cannot speak. He was very happy, and he also delivered his talk in a very nice way,
right from the beginning to this point, how we have increased and how we have progressed. So I think that he painted a perfect picture for the progress of India. Thank you, sir. Dr. P. Das, former DDG Agriculture Extension, जिन्होंने काफ़ी वर्षों तक 31 वर्षों तक यहाँ ICAR में सर्विस दी है, वे भी फरीदाबाद से यहाँ आए, प्रकृति ठीक न होते हुए भी आए और उन्होंने भी यहाँ पर निवेदन दिया, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन नेटवर्क एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया। बहुत बारीकी से अध्ययन था, सटीक अध्ययन था। जैसे मुझे लग रहा था कि एक PhD का जब वाइवा चलता है तो जो PhD का विद्यार्थी किस प्रकार से अपना निवेदन करता है पूरी बारीकियों से, उस प्रकार का उनका ये रहा, जानकारी बहुत थी। और प्रोफेसर PV वारा प्रसाद, डायरेक्टर क्रॉप इको फिजियोलॉजी, मैनहट्टन से आए हैं। उन्होंने इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल एंड सोसाइटल कैपिटल इन एड्रेसिंग ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी, इनके बारे में बातचीत की। और डॉक्टर चेरालू ने भी इसके साथ अपना निवेदन रखा। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि आपकी भी प्रतिक्रिया ऐसी होगी। हमने कुछ पाया है, मुझे विश्वास है कि इसके बारे में भारत के आगे चलकर जो कृषि नीति तैयार होगी या सरकार को भी जो कुछ हम सुझाव देने रहेंगे तो सीधे सीधे हम किसानों के मन में क्या बात है वो वहाँ तक पहुँचा सकेंगे। और भारत की ये 75 वर्ष में जितनी उन्नति हुई है उतनी उन्नति भारत का जब शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा स्वतंत्रता का, ये 75 वर्षों में उन्नति हुई, उतनी उन्नति आगे आने वाले 25 वर्षों में होगी या उससे भी ज़्यादा होगी और हम एक श्रेष्ठ भारत के तरीके उभरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आभार। दो दिन की अंतर्राष्ट्रीय धन्यवाद सुनील जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे दत्तात्रेय होसवाले जी, हमारे ICAR के मुखिया डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी जो कि सेक्रेटरी डेयर और DG ICAR हैं, डॉक्टर मकरंद करकरे जी, बद्री नारायण जी, हमारे प्रमोद चौधरी जी और हमारे सभी DDG महोदय, सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी मानवों को मेरा नमस्कार। ये जो 2 दिन की कार्यशाला की गई, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को कि उन्होंने हमें मौका दिया, मुझे मौका दिया एक एज ए को चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बनने के लिए। और बड़े नज़दीकी से मैंने देखा कि किस तरह से एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जब भी बैठक होती थी तो मकरंदे साहब और दिनेश जी बड़ा एक डिटेल लिस्ट बना के लाते थे, भाई क्या क्या कार्य किसको करना है, कौन कहाँ रुकेगा, एक एक पार्टिसिपेंट्स का नाम भी उसमें, गेस्ट हाउस में कहाँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हमने देखने को मिली भारतीय किसान संघ की। इसके लिए मैं आपको सब मुबारकबाद देता हूँ सभी को और धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को कोई दिक्कत हुई हो इस लॉजिस्टिक्स में, रुकने की, खाने की, पीने की, कोई भी किसी तरह की। तो ये एक बहुत अच्छा एक आयोजन इन्होंने किया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। जब ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था तो ये था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या टॉपिक रखा जाए इस कॉन्फ्रेंस का, और फिर ये हुआ कि काम बहुत हुआ है, इसको हमें कहीं ना कहीं एक अवलोकन करने की जरूरत है, हमें अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है क्या काम हमने 75 वर्ष में किया है। और इस सही मामले में हमारा ये 75 वर्ष में जो हमने काम किया है इसको बताया जाए पूरे विश्व को कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम किस तरह से न सिर्फ अपने देश को बल्कि विदेश में वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं हम विदेशों को भी हम किस तरह से फीड कर सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। कई देशों को हमने सहायता भी दी है, जैसे कि कई लोगों ने एग्जाम्पल भी दिए इस 2 दिन की कार्यशाला में। श्रीलंका को दिया हमने और बहुत सारे देशों को हमने अपना खाद्यान्न दिया, दूध दे रहे हैं, अंडे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उनको उपलब्ध करवा रहे हैं।
तो इसके बारे में जो चर्चा विभिन्न पहलुओं पर की, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर लेकर की हमने, चाहे हमने चर्चा की किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करें, या हम लोग किस तरह से फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो जिस पहलू पर भी बात की वो सारे पहलू में भारत कहीं ना कहीं आप देखेंगे अग्रणी है। जैसा रतनलाल जी ने भी बताया, सॉइल के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई उन्होंने, लेकिन अगर हम लोग फिर से अवलोकन करें, हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे पास भारतवर्ष में ऐसा कोई क्लाइमेट नहीं है, चाहे माइक्रो क्लाइमेट हो, चाहे हॉट क्लाइमेट हो, किसी तरह का भी क्लाइमेट हो, ठंडे से लेके गर्म तक हर तरह का क्लाइमेट उपलब्ध है, हर तरह की सॉइल उपलब्ध है, जितनी तरह की सॉइल होती हैं, तो कुछ भी हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम लोग कर रहे हैं सारा कुछ जो भी है। तो ये भी एक अवलोकन हम लोगों ने किया कि और क्या क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ हम इसको कर सकते हैं, किस तरह से तकनीकी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करके हम कम जगह में सीमित साधनों के साथ ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसका एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। ये सब चीज़ों को अवलोकन करके और आगे की दिशा निर्देश हम लोग इसमें निश्चित करेंगे इसके बाद में। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमें चीफ गेस्ट महोदय को भी सुनना है, अधिक समय उनको आज दिया जाएगा क्योंकि सब लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बात, क्योंकि मैं कृषि शिक्षा से संबंध रखता हूँ और देश की कृषि शिक्षा, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उसके लिए हमारे एजुकेशन डिवीजन के द्वारा क्वालिटी को मेंटेन करता है सभी स्टेट्स में। हालांकि कृषि शिक्षा एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें पिछले करीब 6 साल से जो एक स्पीड पकड़ी है हमारे सिस्टम ने, शायद ही किसी और शिक्षा प्रणाली में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, जहां अभी तक करीब 1000 बच्चों को करीब 10 से 15 लाख खर्च करके एक बच्चे पर विदेश भेजा है। जहां बच्चा जाना चाहता है वहां उसको भेजा है एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, उनको सीखने के लिए। करीब 400 फैकल्टी को हमने बाहर भेजा है, 900 के करीब एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट्स हम लोगों ने बनाई हैं ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, हम लोग अच्छे सीमित साधनों में अच्छा उत्पादन, अच्छी उत्पादकता की बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सफलता मिली है। आज जो एक नया इकोसिस्टम एक बना है हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम में, उस एजुकेशन सिस्टम में आप उस इकोसिस्टम को देखेंगे, कहीं भी जाएंगे किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में, आपको एक माइंडसेट चेंज नजर हुआ आता है बच्चों के अंदर। अधिकतर बच्चे आज की डेट में, एक तो सबसे पहला ये है कि लड़कियां आज हमारे पास पहले करीब 23% होती थी, आज की डेट में करीब 49% लड़कियां हमारे यहाँ एडमिशन लेती हैं एग्रीकल्चर में, एक बड़ी खुशी की बात है। और अधिकतर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोफेशनल डिग्री ये बना दी गई है। 1 साल तक बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, कुछ सिर्फ सिखाया जाता है कि किस तरह से आप एक्सपीरियंस लें, किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, किस तरह से आप लोन ले सकते, सब सारी चीज़ें उनको 1 साल तक, या राबी प्रोग्राम होता है स्टूडेंट को किस तरह से गाँव में रह के कुछ सिखाया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे सिस्टम की। और मैं समझता हूँ आप जैसे मंच के द्वारा और हम लोग इसमें प्रगति कर सकते हैं। आप सभी प्रांतों से आए हुए हैं और जो भी यहाँ डिस्कस हुआ है, इसको चाहे वो लेजिस्लेशन पर डिस्कस हुआ, चाहे और किसी पॉइंट पर डिस्कस हुआ, तो ये सारे संदेश सभी किसान भाइयों को आप पहुँचाएंगे जो हैं कि किस तरह से उन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को और प्रेरित करें। और उस प्रेरणा के लिए और बहुत सारे कदम ICAR अभी उठा रहा है, जैसे कि 10th के बाद में आपको पॉलिटेक्निक डायरेक्टली एडमिशन देने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, उसके ऊपर भी कोर्स करिकुलम बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो भी शायद तैयार हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग अपनी कृषि शिक्षा में लेके आ रहे हैं, जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर बने, नौकरी लेने वाला न बने, नौकरी देने वाला बने। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना बदलाव आया है बच्चों के माइंडसेट में और बच्चों के प्रणाली में कि वो रियली कोट करने लायक है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा।
और मुझे ये मौका देने के लिए भी मैं आयोजकों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान सरकार एवं माननीय दत्ताजी हंसबोले, सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी आईसीआर श्रीमान टी महापात्रा जी, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल साहब, इकोनॉमिक आर्थिक संघ के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर जलपति राव जी, महामंत्री श्रीमान प्रमोद जी और इस आयोजन के सचिव श्रीमान मुकरन जी करकरे, यहाँ विराजमान कई डीडीजी, एडीजी, संगठन मंत्री श्रीमान दिनेश जी कुलकर्णी, कई वाइस चांसलर्स, वैज्ञानिक, किसान बंधु, यहाँ ये कार्यक्रम समापन की ओर है और हमको सुनने के लिए बहुत कुछ शेष है, इसलिए मैं केवल औपचारिकता की ही निभाऊंगा। हमारी सृष्टि, संस्कृति, इसकी मान्यता रही है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम मानते हैं कि ये भूमि, जिस भूमि में बीज उग जाता है वो माँ है, उसमें मातृत्व की क्षमता है और उसमें सब कुछ पहले से है, कुछ भी बाहर से देने की जरूरत नहीं, और बाहर लेने में कहाँ जाएंगे हम इसके बाहर। इसलिए पृथ्वी में सब कुछ है, अगर आवश्यकता है तो केवल ज्ञान की, जिसकी साधना के लिए यहाँ सब साधक बैठे हुए हैं। एक समय रहा हमारा प्राचीन काल, अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाया, हर किसान को वैज्ञानिक बनाया और हर खेत को भी लैब बनाया, अनुभूत किया, निष्कर्ष निकाले। और क्यों नहीं, क्योंकि नामकरण ही हमारा इसी आधार पर पड़ा। भा, धन, रथ। भा संस्कृत की मूल धातु है, भानु, भास्कर यानी प्रकाश, पर्यायवाची ज्ञान का। ज्ञान में रथ जहाँ के लोग, वो भारतवर्ष, अर्थात ज्ञान की खोज करने वाला ये भारतवर्ष है। भ्रम पैदा करने वालों ने भारत के नाम पर भारत जोड़ दिया, लेकिन हम कौन हैं इसको अनुभव करना और वापस वो हुंकार भरना, मेरे ख्याल से ऐसा समय आ रहा है। इसलिए हमने माना कि ये प्रकृति भी हमारी माँ है। बीज के अंकुरण के बाद उसका 97% पोषण प्रकृति कर देती है। पंचतत्व है, सूर्य है, हम केवल 3% की पूर्ति के लिए सारी माथापच्ची करते हैं। और प्रकृति यानी ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। इन पंचतत्वों के माध्यम से उससे जो सृष्टि बनी, 84 लाख योनियां बनी, हमारी शरीर बना और इसके उपभोग के लिए सारे साधन बने। इसका भी अपना एक नियम है। इन पंचतत्वों का शुद्धि चक्र वो बरकरार रहे, उसमें हम कहीं बाधक नहीं बने, बने तो साधक बने उसके। इसलिए दृष्टि जो है हमारी, वो हमेशा रही है कि प्रकृति हमारी माँ है और इसके अपने जो नियम हैं उनका हम पालन करें। ऐसे ही हमने ये माना कि गिव बैक, जो लिया उसे लौटाना। ये मान्यता रही है कि जीवन में ही हम अपना कोई भी कर्जा है किसी प्रकार का, उसको चुका करके ही वापस जाएं। कर्जदार होकर के यहां से नहीं जाएं। ऋण होने के लिए अगर कई बार कुछ ऐसे
अनुभव आते हैं जीवन में कि नहीं ये कोई पुराने जन्म का कर्जा था, ये मान करके हम संतोष कर लेते हैं और ये धैर्य धारण कर लेते हैं कि वास्तव में इस जन्म में चूक गया, अच्छा रहा। और कई बार कोई व्यक्ति उधार लेके चला जाता है, वापस नहीं आता, तो भी मान लेते हैं अगले जन्म में बाप बनेगा या बेटा बनेगा या बैल बनेगा और चुका देगा। पुनर्जन्म की इस धारणा के साथ और हमारी मान्यताएं रही तो ऋण होना किन किन से, सोसाइटी का, समाज का ऋण हमारे पास कितना है, उसको हम कैसे चुका पाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो पशु भी काम करता है, सभी काम कर लेते हैं, लेकिन ऋण होने के लिए सामाजिक ऋण को और इस प्रकृति के ऋण को, पंच तत्वों के ऋण को चुकाने के लिए कौन सा मार्ग है, और इसके बारे में ऋग्वेद में एक महावाक्य घोषणा करता है, कृषि मित्र कृषस्व। भारतीय किसान संघ के लोगों के साथ में और हमारा ये ध्येय वाक्य भी लिखा रहता है, खेती करो और खेती ही करो। समझ से बाहर की बात है आज के टाइम में, लेकिन हम उसी चिंतन के साथ अगर विचार करें तो इस पृथ्वी को शुद्ध रखना, अर्थात इसमें जितने भी जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, अति सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन सबका पोषण करना। एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है, भोजन बनता है, पोषक बनता है, इसमें सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। हम उनके जीवन चक्र को तोड़ करके और जो योगदान दे रहे हैं क्या, देखने वाला विषय यह है। इसलिए इन प्रकृति का, पंच महाभूतों का ऋण चुकाने वाला जो विषय है, उसमें मिट्टी को प्रदूषित कर दिया, सारा विश्व भोग कर रहा है, शोषण कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है, लेकिन उसको गिव बैक, वापस लौटाने वाला काम ये नहीं हो रहा। इसलिए आज प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या हम भोग रहे हैं। और ये भी कहा गया कि केवल और केवल किसान के हाथ में वो शस्त्र है जो मिट्टी को शुद्ध कर सकता है, मिट्टी को कठोरता से, उसकी कठोरता को तोड़ करके उसमें पानी और हवा इसका प्रवेश करवा सकता है। हम सब जानते हैं कि हवा और पानी भी मिट्टी में नहीं जाएंगे, वाष्प नहीं बनेगी, तो पौधा तो इनटेक करेगा ही नहीं, ग्रहण करेगा नहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, वो तो वाष्प के रूप में ही लेता है। इसलिए उसकी कठोरता को तोड़ना, उसमें हवा और पानी अंदर जाए, शुद्ध पानी जाए, उसका भंडार भी भरे, और फिर वायुमंडल तो, वातावरण तो, पर्यावरण तो अपने आप ही ठीक होगा अगर इतना काम कर लेते हैं। तो ये माना गया कि ये किसान के हाथ में ये काम है और वो इसको कर सकता है। इसीलिए खेती करो और खेती ही करो अगर ऋण होना है तो। तो प्रकृति के इस एहसान को से हम मुक्त होने के लिए, ऋण मुक्त होने के लिए और इस प्रकृति की नियमित क्रियाओं में सहभागी कैसे बन सकते हैं। खेती करते समय हम सभी खेती का चिंतन करने वाले लोग बैठे हैं, इसके पोषक साधक बनने का जो रास्ता है वो विकसित हो। अमेरिका के एक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर, जो पर्यावरणविद भी थे, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, उन्होंने कहा था कि हम यू टर्न करके 300 वर्ष पहले जा पहुंचे और यदि हमको आगे बढ़ना है तो भारत के मार्ग निर्देशन में जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अर्नोल्ड टॉयलेट ने भी कहा कि 28 संस्कृतियों का, सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि अगर दुनिया को बचाना है तो भारत की ओर देखो, भारत की शरण में जाओ। अर्थात
आज इस मिट्टी के बचाने के लिए, खत्म होते जा रहे पानी को वापस भंडारण के लिए, इस पर्यावरण के लिए दुनिया को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे समय में हो सकता है ये जिम्मेदारी वापस अब हमारे कंधों पर आए। तो क्या हम इस चेतावनी को, इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? एक विचारणीय प्रश्न है। तो प्राचीन अनुभूत ज्ञान और आज का विज्ञान, इन दोनों को मिलकर के हम एक सस्टेनेबल, सही मायने में धारणक्षम खेती का मार्ग निकाल सकते हैं और पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा कम से कम एक बात तो विश्वास तो हमारे मन में पैदा हो। दुनिया को विश्वास है, लेकिन हम हैं कि हमारी धोती नहीं संभाल पा रहे अभी तक। इसलिए अगर इस संगोष्ठी में इस तरफ हम एक कदम भी आगे बढ़ा पाए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि हम ये संगोष्ठी, ये आयोजन सार्थक होगा। भारत माता की जय। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य श्री दत्तात्रेय हुसबले जी, सरकार्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेरे सहकर्मी उप महानिदेशक डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी, BAERC के प्रेसिडेंट डॉक्टर जलपति राव जी, सेक्रेटरी BAERC श्री प्रमोद चौधरी जी, भारतीय किसान संघ के प्रेसिडेंट सम्मान्य श्री बद्रीनारायण चौधरी जी, कॉन्फ्रेंस के आयोजक डॉक्टर मकरंद करकरे जी, सभागार में उपस्थित समस्त महानुभाव, विशेष रूप में डॉक्टर श्री दिनेश कुलकर्णी, समस्त उप महानिर्देशक डॉक्टर A.K. सिंह DDG एक्सटेंशन, डॉक्टर त्रिपाठी DDG एनिमल साइंस, डॉक्टर A.K. सिंह DDG हॉर्टिकल्चर और भारतीय किसान संघ के समस्त सम्मान्य कार्यकर्ता, अधिकारी, सभ्य, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के समस्त अधिकारी और विशेष रूप में आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त डेलीगेट्स, गेस्ट जो भारत से एवं अन्य देशों से उपस्थित हुए हैं, और विशेष रूप में जिन लोगों ने आभासी रूप में हमारे साथ जुड़े थे और अभी भी जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल में, तो आप सबको पुनः मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। इनॉग्रल सेशन में भी मैं अपना बात रखा था, दोबारा बोलने का कोई मन नहीं था, लेकिन दिनेश जी का हरदम ये रहता है कि मेरे उपस्थिति आवश्यक है, और उनका मैसेज गया कि आपको आना है, और आज दिन भर दूसरा कार्यक्रम भी हम लोगों का था और समय अतिक्रांत, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को हम ज़्यादा सुनना चाहेंगे। मैं 5 मिनट समय लूँगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चर्चा हुआ और डॉक्टर करकरे साहब हमारे सामने हैं,
उसके बारे में बताए हैं कि कौन क्या लेक्चर दिए हैं, किस पहलू पर आलोकपात किए हैं, और विस्तारित रूप से सेशन वाइज उन्होंने हमारे सामने उसको पेश किए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है भारतीय कृषि को कैसे कैपिटलाइज किया जाए, हार्नेस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के प्रगति के लिए और वैश्विक स्तर पर कृषि के प्रगति के लिए। क्या हम 4-5 लेसन्स ये 2 दिवसीय कार्यक्रम से लेके जा सकते हैं? मैं मानता हूं कि आगे इसका स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जरूर आएगा और जिसके ऊपर क्रियान्वयन किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर और भारतीय किसान संघ बैठकर चर्चा भी करेंगे। 2-3 बिंदु जो मैं समझता हूं जो हमारे देश के कृषि में प्रगति के लिए आवश्यक है, वांछनीय है, तो जो विभिन्न प्रेजेंटेशन में आया भी होगा और उसको आगे बढ़ाना आवश्यक है। हमारा आवश्यकता खाद्यान्न में पूरा किए हैं, लेकिन खाने के तेल में हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, बाहर से आयात करते हैं। तो अगर देश का समृद्धि हमें चाहिए और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है हमें उठाना होगा। दलहनी क्षेत्र में जैसे मैं बताया कि हमने काफ़ी आगे बढ़े हैं। अगले 5 साल के अंदर क्या हम कोई एक पॉलिसी इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाकर सरकार की मदद से और भारतीय किसान संघ और सारे इकोनॉमिक सेंटर्स और आईसीआर सब लोग मिलकर और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्या एग्जैक्टली हम करें ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सटेंशियली कर सकते, ख़त्म शायद ना कर पाए 5 साल में, सब्सटेंशियली कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और भी चर्चा किया जा सकता है और नहीं तो एक रिकमेंडेशन लाया जा सकता है कि ये हमारा पहला ये देश की कृषि को समृद्ध करने के लिए एक कदम होना चाहिए। और बहुत बड़ा खर्चा जो है इसके ऊपर 1.25 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी इससे ज़्यादा जो हम किए हैं इस साल, पिछले साल, तो मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर और गहराई से सोचने की आवश्यकता है। क्या विज्ञान की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो हम अभी अपने परिषद में चर्चा कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ कमी है, कौन से प्रदेश में हमारी क्षमता है, दक्षता है और कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि है, और क्या कमी है कि जिसको हम पूरा करने की आवश्यकता है। और आप लोगों के अभिज्ञता, आपके देशव्यापी आपका कार्यक्रम है भारतीय किसान संघ का, और किसान भाइयों के साथ चर्चा करते हुए हमें एग्जैक्टली क्या करना है, किसान का एग्जैक्ट समस्या क्या है। दलहनी फसल जैसे तिलहनी फसल जैसे सरसों है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है, क्या समस्या है कि उसको और पैदावार नहीं बढ़ा सके वहाँ, या हरियाणा में या पंजाब में गेहूं के बदले क्या हम मस्टर्ड उगा सकते हैं और कहाँ कहाँ उगा सकते हैं, किसान को प्रेरित किया जा सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में। यही सम्मान्य प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। एक उदाहरण दिया मैंने, इसी तरह का हम चाहते हैं कि टिकाऊ खेती हो, पानी का इस्तेमाल कम हो, वाटर फुटप्रिंट कम हो, केमिकल फुटप्रिंट कम हो, और नेचर पॉजिटिव एग्रीकल्चर हो, ये सारी चीज़ें हों। क्या इसमें हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते हैं? क्या भारत सरकार खाली खर्च करेगा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार खर्च करेंगे? क्या इंडस्ट्री का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दिशा में? तो अगर है कि क्या हम ऑर्गेनिक जो हमारे खेती हो रही है वो 4 मिलियन टन के ऊपर नहीं गया है। बहुत साल से सरकार के सारे सपोर्ट चीज़ें स्कीम योजना जो भी चल रहा है, अब नेचुरल फार्मिंग की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर इसी रेट में प्रगति होगी तो सर्टनली बहुत सारे जो है हमारे एरिया है जहाँ 300 से थोड़ा सा ज़्यादा जो जिला है जिसमें 85% से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है। आप सोचिए जो बाकी सारे जो जिला है 400 से ज़्यादा, वहाँ 15% फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है। तो ये हिसाब बताता है सरकार के। तो हमें सोचना है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ क्या कम कर सकते हैं, जहाँ बिल्कुल हो नहीं रहा है उसको तो इमीडिएटली ऑर्गेनिक करने की हमारे पास ये सुविधा होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और क्या इसी तरह का हम सूक्ष्म सिंचाई 11-12 मिलियन हेक्टेयर में इधर उधर हो रहे हैं, तो हम जैसे गन्ना की खेती करते हैं और पानी हमारे पास है नहीं और फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो इसी तरह का बहुत सारी समस्या है। तो क्या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा हम लोग मिलकर बड़े कॉरपोरेट हाउस के साथ बात करते हुए उनको इस कार्यक्रम में लगा सकते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र में मिनिमम व्यवस्था नहीं है अभी तक, बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्रों में वो ही पूरा कर लिया जाए कि वहाँ ढंग से डेमोन्स्ट्रेशन हो सूक्ष्म सिंचाई का, ताकि किसान भाई आए और देखे। अब वहाँ बाउंड्री वॉल है नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे लगाएगा? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन हम जो बात किए हैं, एक सेशन रखे थे, तो उसको कैसे करेंगे? पूर्वी भारत में हम तो हरित क्रांति यहाँ ले आए और वहाँ बहुत सारी समस्या आज देखने के लिए मिलता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना है, स्थायी क्रांति लाना है और स्थायी खेती करना है, टिकाऊ खेती करना है। तो क्या करने की आवश्यकता है? तो मेरे ख्याल में हम लोग बैठकर इसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन ला सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा कि हम इसको थोड़ा इसके ऊपर और ध्यान दे के करें और हम लोग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। हम अपना प्रयास कर ही रहे, कृषि विज्ञान केंद्र को कैसे और थोड़ा बल देंगे, उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे और काफ़ी लिमिटेशंस हमारा अपना है और आप लोग अगर हमारे साथ मिलकर करेंगे ज़रूरी होगा। और शिक्षा संबंध में हमारे जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्टेज में, उनका कृषि संबंधित ज्ञान क्या है? उनको सही कृषि शिक्षा प्रदान करना, ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। वो क्या पढ़ाएंगे कृषि शिक्षा संबंध में अगर खुद का ज्ञान ना हो तो? और सिलेबस ही नहीं है कि जहाँ कृषि शिक्षा प्रदान किया जाए उसी स्तर पर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर ज्ञान ही नहीं है तो उद्यमशीलता बढ़ेगा कैसे? तो ये एक आवश्यकता है कि रिकमेंडेशन दिया जा सकता है कि उद्यमशीलता तभी होगा जब इस तरह का ज्ञान उपलब्ध होगा और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा और पारदर्शिता बढ़ेगा, वहाँ पारदर्शी तरीके से काम कैसे होगा और एफिशिएंसी के साथ काम कैसे होगा, ताकि हम उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सो इसी तरह का हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मेरे ख्याल में करने के लिए बहुत कुछ है। इकट्ठे मिलकर करने से और हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकता है और मैं हरदम ये बात को रिपीट करता हूँ। और आज हम सब लोग मिलकर ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम किए हैं और बहुत सारे बिंदु पर चर्चा हुआ है, काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स रहा है और मैं समझता हूँ इसमें से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और अभी मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और विशेष रूप में ऑर्गेनाइजर्स जो है कई दिनों से लगे थे और एक बार हमारे साथ पहला मीटिंग जब हुआ था, हम लोग मिलकर जब मीटिंग किए थे, उसके बाद जैसे ये रूपरेख लिया है
तो भारतीय किसान संघ और एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर दोनों मिलकर जब कर्मकर्ता लोग मिलकर इसको बनाए हैं, सो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आभार, सबको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कहता ही जीवन है सागर का गांभीर्य जहाँ, जो कर्मों की फुलवारी है नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। विपदाएं कितनी आई है, कितने ही आघात सहे, किंतु अचल जो खड़ा हुआ है, वंदन शत शत नरवर है, वंदन शत शत नरवर है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। जिसके मन में ध्येय देश का निस्दिन चिंतन वंदन है, देशभक्ति का प्रकाश हंसता जग को पंथ दिखाता है, जग को पंथ दिखाता है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। जिसका स्मित चैतन्य पुष्प है, शब्द शब्द नव दीप प्रखर, जिसकी कृति से भविष्य उज्ज्वल, उसको जग का वंदन है, उसको जग का वंदन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। सागर का गांभीर्य जहाँ, जो कर्मों की फुलवारी है, नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। धन्यवाद। मैं माननीय दत्ता जी से अनुरोध करूंगा कि हम उद्बोधित करें। मंचासीन आज के कार्यक्रम के तथा भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री बद्री नारायण जी, इस संस्था के आईसीआर के डायरेक्टर जनरल साहब और डीआरई के सेक्रेटरी डॉक्टर महापात्र जी, श्री ए.के. सिंह जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, श्री प्रमोद जी, इस जलपति राव जी भी हैं, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से सक्रिय सभी बंधु एवं भगिनी, मैं सोचता हूं कि आज के कार्यक्रम समय पर समाप्त हो तो अभी तक जैसे कार्यक्रम कल से चला है उस परंपरा को थोड़ा ठीक से रखें तो 6:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं इस अत्यंत सफल एवं उपयुक्त संगोष्ठी के लिए आयोजक त्रय भारतीय किसान संघ, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर तथा आईसीएआर, इन तीनों
संगठन एवं संस्थाओं को इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आपने बहुत ही एक सार्थक कार्य का संपन्न किया और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में ऐसा एक आयोजन बहुत ही अर्थपूर्ण है, प्रासंगिक है। कृषि क्षेत्र के संबंध में इस प्रकार के चिंतन करना अभी तक क्या हम पाए, समस्या चुनौती क्या है, क्या हमारी उपलब्धि रही और आगे जाकर और क्या साधना करनी चाहिए और क्या योगदान कर सकते हैं, इसके लिए एक रोड मैप भी मोटे तौर पर विचार करें तो बहुत ही एक इस प्रकार के इस वर्ष में एक विशेष आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम मालिकाओं में यह है, ऐसे कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं कल से यहां उद्घाटन से लेकर लगभग सभी सत्रों में उपस्थित रहा। वैसे देखा है तो मैं इस कार्यक्रम के किसी सत्र में बोलने के लिए मेरी योग्यता नहीं है। कृषि क्षेत्र से मेरा संबंध इतना ही है, आई एम ए कंज्यूमर, मैं खाता हूं इसलिए। हाँ, थोड़ा सा कृषि परिवार से संबंध मेरा है क्योंकि कृषि परिवार से आया हूं, लेकिन बहुत पहले छूट गया। घर में हमारे बाकी लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन मैं तो घर से बाहर निकल चुका हूं, इसलिए कृषि क्षेत्र के बारे में प्रत्यक्ष वहां जाकर कुछ समय 1-2 दिन बिताना अलग है। ऐसे विद्वज्जनों के बीच इतने सत्रों में ये सब सुनने के बाद मैं समापन में कुछ कहूं, मुझे थोड़ा सा अटपटा सा ही लगता है। आप लोगों के सामने मैं क्या कहूं, और मैं क्यों कह सकता था वो बद्री जी ने कह दिया, तो उससे भी मैंने एक पेज फाड़कर वहीं रख दिया। ठीक है, ये हो गया ऐसे। जब दिनेश कुलकर्णी जी और डॉक्टर मकरंद जी आए थे मेरे पास इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ क्या होने वाला है बताने के लिए और कार्यक्रम में बुलाने के लिए, मैंने उस समय भी कहा, अरे भाई कार्यक्रम में चाहे तो मैं 2 दिन बैठूंगा और 2 दिन सुनूंगा, मेरा समय नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं कहूंगा। मैं 2 दिन बैठूंगा और मेरा ज्ञानवर्धन होगा और कृषि के बारे में कुछ मैं भी सीखने के लिए, मुझे भी सीखने के लिए एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। ऐसे नहीं, आप वो तो दोनों दिन करिए, लेकिन अंत में कुछ बोलो, ऐसे बताया। तो मुझे सच में कहना है तो यहां तक ये दोनों मुझे क्यों आग्रह किए रहने के लिए, ये मुझे ध्यान में आया। इसको कुछ कृषि के बारे में मालूम तो है ही नहीं, कम से कम 2 दिन यहां बैठेंगे तो कुछ तो सीखेगा, ऐसे इन्होंने विचार किया होगा, या मेरे संगठन से किसी ने इनको बताया भी होगा, इनको बुलाओ जरा ऐसे। तो उस दृष्टि से मैं विद्यार्थी बनकर आया और विद्यार्थी ही हूं, और वार्षिक उत्सव में विश्वविद्यालय कॉलेज में विद्यार्थी के तरफ से भी बोलने के लिए किसी को मौका देते हैं, तो ऐसे मुझे भी दिया है, ऐसे मैं मानता हूं। भारत के कृषि क्षेत्र के बारे में, इसके महत्वपूर्ण योगदान के संदर्भ में सभी लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, ये सब हम सब जानते ही हैं, बार बार कहने पर भी है तो है ही। प्राचीन सभ्यता है तो स्वाभाविक है, कृषि से ही सभ्यता के विकास होता है, हुआ है। तो इस कारण से हम एक प्राचीन राष्ट्र के नाते कृषि क्षेत्र में अद्भुत साधना हमने किए हैं, अपने पूर्वजों ने किए हैं। लेकिन पिछले 75 वर्षों में जो देश में इस खेती के क्षेत्र में प्रगति हुई है, विकास हुआ है, इस संदर्भ में, उन उपलब्धियों के संदर्भ में सच में सोचेंगे तो हमें गर्व होता है। जैसे आपने कहा कि बेगिंग बोल टू
एक्सपोर्टिंग नेशन, ऐसा हमारी स्थिति रही है। हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर होकर केवल उतना ही नहीं, दूसरों के लिए भी यहां से हम खाद्यान्न भेज सकते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं। ऐसे एक अद्भुत उपलब्धि के लिए अभी तक के सभी सरकारों को, वैज्ञानिकों को, किसानों को और इससे जुड़े सभी को, इस देश के हर एक नागरिक के तरफ से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और उन सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में डॉक्टर वरप्रसाद जी ने कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो इस देश के हैं, भारत में कार्य किए या विदेशों में कार्य किए, उन सबका चित्र लगाकर उन्होंने एक स्लाइड में दिखाया और वो सबसे बताया आप ताली बजाइए। हम सबने ताली बजाई, लेकिन मेरे मन में उस समय लगा ताली बजाना क्या है, खड़े होकर उन सबको हमें प्रणाम देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लीडरशिप दी है। सामान्यतः ऐसे काम तो एक व्यक्ति नेतृत्व देता है, आइडिया देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक टीम वर्क होता है। देश भर में उन लोगों ने जो बताया, उन्होंने जो करके दिखाया, जो मार्ग प्रशस्त किया, उसको लेकर एक बहुत ही गर्व की बात उपलब्धि के रूप में हम लोगों ने हासिल की है। वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है, व्हाइट रेवोल्यूशन हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार से उसके बारे में कहते हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। भारत की खेती की परंपरा जो है विश्व में बहुत प्राचीन है। अल्विन टॉफलर ने एक जो पुस्तक लिखे हैं थर्ड वेव्स, उसमें उन्होंने 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास जो हुआ उसके बारे में, फर्स्ट वेव ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, सेकेंड वेव जो है इंडस्ट्री है, थर्ड वेव जो है इंफॉर्मेशन या इंटरनेट आज जो आए हैं, इन तीनों के बारे में उन्होंने अपने थर्ड वेव पुस्तक में बहुत विस्तार से कहा है। तो मुख्य रूप से उन्होंने इंटरनेट के बारे में कहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो है वो एक क्रांति के रूप में, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रूप में आज दुनिया में जिस प्रकार इसका विकास हुआ है, हम सब प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण अनुभव करते ही हैं। लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो हुआ है भारत में इतने वर्षों में, एक सक्सेस स्टोरी है। इस सक्सेस स्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल जर्नी in the field of agriculture is not only to be proud of, but it serves as an inspiring example for all. PL 480 के दिन आप थोड़ा याद करिए। यहां नई पीढ़ी के लोगों को PL 480 क्या है मालूम ही नहीं होगा शायद। तो अमेरिका के कानून था, यहां गेहूं लाए वगैरह वगैरह सबको मालूम है। तो आज सुबह एक सत्र में मेरे मित्र इन्होंने बताया कि कैसे हम 1965 के वार के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को कैसे जीते हुए भूमि को वापस देना पड़ा, क्योंकि हम बाकी विषयों में भीख मांगने वाली स्थिति में थे। हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं होने के कारण हम दुनिया के सामने झुके। मुझे याद है आर.के. लक्ष्मण के एक कार्टून आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उस कार्टून में एक राजनीतिक नेता खड़े हैं, कोई मिनिस्टर वगैरह चित्र में, वो टेबल पर एक विश्व के मानचित्र ऐसे बिछाया हुआ है, चारों ओर अधिकारी बाकी लोग खड़े हैं, और मिनिस्टर बताता है देखो हियर इज अ कंट्री विच हैज नॉट लेंट एनीथिंग टू अस। यहां एक देश है, हमें कुछ भी कर्जा नहीं दिया है, वहां जाएंगे, यानी दुनिया से सबसे हमने कुछ न कुछ लिया है। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो उस स्थिति से दुनिया के सामने भीख मांगने वाले की स्थिति से आज दुनिया के रक्षक के रूप में होने में जो एक
ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वह पिछले 2-3 पीढ़ी में, यह भारत की यशोगाथा जो है, यह इस वर्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में इसको याद करना, इसको दर्ज करना, इसको एक प्रेरणा, इससे प्रेरणा लेकर आगे के लिए मार्ग क्या हो सकता है, इस विषय के बारे में विचार करना बहुत ही एक सार्थक कार्य है। दुनिया में क्या हो रहा है अभी, दिल्ली जैसे शहर में भी और कहीं आईटी में क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत विस्तार से और तरह तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन मनुष्य के बहुत ही प्राथमिक जो आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता है, अन्न के बारे में यदि हम आज चर्चा नहीं करेंगे तो अन्न, वस्त्र, ये जो मौलिक आवश्यकता है, इसके बारे में तो ही बाद में सोचना पड़ेगा। यू कांट ईट कंप्यूटर्स एंड चिप्स। तो अल्टीमेटली मनुष्य को खाने के लिए अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए। तो इन चीजों के बारे में क्या हम कर सकते हैं, और भूमि अभी जितना है उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं होने वाला है दुनिया के, और उपजाऊ भूमि जो है वो कम होते जाएंगे। किसी ने वो भी कहा यहां, शायद प्रहलाद पटेल जी ने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हम तो विस्तारवादी नहीं हैं, तो इसलिए हमारी भूमि तो इतनी रहेगी। समझो भूमि ज्यादा भी आए, केवल भूमि नहीं मिलेगी, जन भी आएंगे साथ में जब भी होगा। तो इसलिए वी हैव टू फीड सो मेनी पीपल अगेन। तो इसलिए जितने भूमि है उसमें अधिक उत्पादन कैसे करना, कृषि उत्पादन होना चाहिए, यही तो सारा सर्कस है। इसलिए सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से विचार करके यहां जो सत्रों में बहुत व्यापक रूप से कई आयामों में विचार रखे, तो यह बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। भारत के कृषि परंपरा के बारे में भी थोड़े बहुत यहां उल्लेख तो हुआ। भारत के वैदिक काल से कृषि का न केवल महत्व बताया है, बल्कि खेती कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी विस्तार से कहा है। आज से लगभग 1200 वर्ष पहले एक ऋषि ने कृषि पराशर ग्रंथ लिखा। उससे तो 3 ग्रंथ है, वो मिलाकर एक कृषि पराशर, ऐसे हम लोगों ने सुना ही होगा, कई लोग पढ़े भी होंगे। तो कृषि पराशर इस ग्रंथ में भूमि, उसके उपजाऊ कैसे, वर्षा कैसे होती है, ग्रह और नक्षत्र के क्या परिणाम होता है, हमारे किसान सामान्यतः वर्षा काल में नक्षत्र देखकर इस नक्षत्र के ये बारिश होगी वगैरह वगैरह वो कैलकुलेट करता ही है, हम सबको मालूम है। हल कैसे होना चाहिए, 3 प्रकार के हल कैसे होना चाहिए, उसका हैंडल कैसे होनी चाहिए, और उसका ब्लेड कितने नीचे जाना चाहिए जमीन में, और ज्यादा जाने से क्या नुकसान होता है, खाद कैसे होना चाहिए, गोबर से खाद कैसे बनता है, खाद की क्वालिटी क्या हो, इन सारे प्रकार के बारे में कृषि पराशर में इतने विस्तार से चर्चा करना, ये जो उन्होंने किया, तो कितने व्यापक रूप से कृषि के बारे में लोगों ने विचार किया है। एक ग्रंथ नहीं है, ऐसे कई है। मैं जिस गांव से आता हूं, हमारे घर में तो हम सुपारी के बगीचे हैं, अनाज थोड़ा है लेकिन ज्यादा सुपारी बगीचे हैं। मैं कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स उस क्षेत्र का हूं। तो हमारे गांव के एक किसान, जो संस्कृत में भी बहुत अध्ययन था उनका, बहुत इनोवेटिव थे उस जमाने में भी, बहुत उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था 100 साल पहले हमारे गांव में। तो ऐसे इनोवेटिव आदमी थे। वो संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण और सुपारी के कृषि करते थे। उन्होंने पूग शतकम, ऐसे एक पूगी फल यानी सुपारी है, तो पूग शतकम ऐसे एक उन्होंने लिखा।
उसमें 100 श्लोकों में सुपारी के कृषि कैसे होने चाहिए उन्होंने लिख के रखा है। ऐसे कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे जो हमारे देश के कृषि के बारे में विस्तार से। तो इन सारे चीजों को से थोड़ा सा आज भारत की जो ज्ञान परंपरा में कृषि के जो महत्वपूर्ण स्थान भी है, योगदान भी है, उसको हमें सामने लाना चाहिए। I don't know whether the agricultural institutes will have any paper about the Indian tradition of agriculture. I don't know. क्यों होना नहीं चाहिए? हमारे कृषि के ग्रेजुएट्स को इस देश के कृषि की परंपरा कैसी थी, ठीक है, परीक्षा में मत रखो उसको, 100 मार्क मत रखो, कम से कम लेट देम रीड समथिंग। नहीं तो हमारे यहां कुछ भी नहीं था, ऐसे ही क्यों होना चाहिए? जो था उसके बारे में आई डोंट नो, एग्रीकल्चरल एजुकेशन में यदि जोड़ दिया, पहले तो नहीं था, इन दिनों में जोड़ा होगा तो मुझे मालूम नहीं। कृषि के संबंध में तो जय किसान जय जवान, उसके साथ विज्ञान भी जोड़ दिया। कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षम, ये सबका कृषि के संदर्भ में कृषि केवल भूख मिटाने के लिए नहीं है, जीवन को चलाने के लिए एक मौलिक आवश्यकता के नाते अन्न चाहिए, इतना ही है क्या? नहीं। कृषि मानवीय सभ्यता संस्कृति को एक बहुत बड़ा योगदान उसने दिया है। योगदान क्या है? कृषि ही आधार है सभ्यता और संस्कृति के। तो इसलिए इस दृष्टि से यदि हम सोचें, अन्न के उत्पाद बहुत होना चाहिए, अबंडेंस, इन अबंडेंस। हमारे अर्थशास्त्र कहता है, भारतीय अर्थशास्त्र, हिंदू अर्थशास्त्र, we should produce abundantly but consume very very frugally। कंजम्पशन के बारे में सादगी और संयम रखा है, प्रोडक्शन के बारे में नहीं रखा है। तो क्यों ऐसे सोचा होगा? 2 प्रकार से। एक, आने वाले दिनों में सूखा पड़ सकता है, अकाल हो सकता है, इसलिए आप प्रोड्यूस अबंडेंटली व्हेन इट इज पॉसिबल। तो उत्पाद ज्यादा करो और बचा के रखो। जैसे बफर स्टॉक के बारे में यहां उल्लेख भी हुआ, दुनिया में पी दास जी ने शायद उल्लेख किया। दुनिया के 15 देशों में मैंने देखा, कहीं भी 22 देशों में मैंने देखा, कहीं भी इतने प्रकार से बफर स्टॉक नहीं है जो हमारे पास है, ऐसे उन्होंने उल्लेख किया। तो एक है उसके लिए। दूसरा और एक है जिनके पास नहीं है, संकट में रहते हैं, उनके लिए देने के लिए, जैसे अभी श्रीलंका के लिए हमको देना पड़ रहा है। तो इसलिए अन्नम बहुकुर्वीत, और वेस्टेज ऑफ फूड ये होता, अन्नम न निंद्यात, ये वेद के आदेश है। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न निंद्यात, डोंट वेस्ट फूड। यानी वेद के ऋषि को मालूम था ये आने वाले लोगों जो है ना, ये फूड वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हजारों साल पहले उन्होंने कहा के रखा, डोंट वेस्ट फूड। मैं उज्जैन में एक वैचारिक कुंभ था, वहां कोई एक विदेश की एक महिला आई थी, उन्होंने फूड वेस्टेज के बारे में दुनिया में कैसे कैसे हो रहा है इसके बारे में बहुत स्टडी करके उन्होंने कुछ विचार बताया कैसे इसको बचाना चाहिए इसे। तो इसलिए विश्व को ज्ञान देने के विश्व गुरु बनना, यह भारत के बारे में बहुत बार कहा जाता है। विश्व को अन्न देने वाले अन्नदाता भी भारत बनना चाहिए, इस पर भी आग्रह होना चाहिए। भारत के सिल्क रूट के बारे में बहुत बारी चर्चा होती है। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, भारत में एक राइस रूट भी था। हमारे एक सोशियोलॉजी के स्टडी करने वाले एक हमारे मित्र ने भारत के राइस रूट के बारे में उन्होंने पेपर लिखा। RIS जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, रीजनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया हैबिटेट में उसका ऑफिस है। उनके एक सेमिनार में उन्होंने ये विषय रखा, राइस रूट ऑफ फ्रॉम इंडिया। सिल्क रूट जैसे यहां से राइस कैसे कैसे गया था, उसके किस्म कैसे गए थे, उसकी प्रजातियां कैसे गई थी है।
वो व्यक्ति जो मेरे मित्र है कोलकाता के हैं, वो जॉर्डन गए थे एक सेमिनार में, उनके इंटरेस्ट है, उन्होंने कई म्यूजियम वगैरह में गया, वहां कुछ आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स थे उसमें देखने के लिए गए। वहां उनको हजारों साल पहले के मिट्टी के मटके मिले। उस मटके के अंदर लौंग था, लौंग। वहां के लोगों ने कहा यह भारत से आया था। तो इसलिए हमारे केवल सिल्क रूट नहीं, और भी कई ऐसे कृषि उत्पाद के रूट्स भी हुए होंगे। इसलिए एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन, इन चीजों के बारे में भी अपने देश में शिक्षा में, सार्वजनिक जीवन के मीडिया में, प्रदर्शनी में, इसमें इनको सामने लाना यह आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। यहां बहुत सारे विषय कल से आए हैं, मैं सभी विषयों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। एक इस संदर्भ में जो बताया है कि कृषि समृद्धि के लिए है, कृषि सभ्यता के लिए है, संस्कृति के लिए है, संतुलन के लिए है। कृषि बढ़ने से पर्यावरण की रक्षा होती है, इंडस्ट्री बढ़ने से पर्यावरण पर थोड़ा असर होता है, लेकिन इंडस्ट्री चाहिए। लेकिन कृषि के कारण पर्यावरण की रक्षा, वो यदि संतुलन रहता है इंडस्ट्री एंड कृषि में, तो पर्यावरण का संतुलन भी अपने आप साधित हो जाता है। और एक बात है कि कृषि के साथ साथ किसान के सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। डबलिंग द इनकम, उसके कारण उनके एक आर्थिक दृष्टि से उनके लाभकारी मूल्य हो, इसके बारे में भी यहां बात आई। डबलिंग द इनकम के बारे में आई। और उद्घाटन सत्र में माननीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसान यानी गरीब है, ये है, बेचारा है, ऐसे जो स्थिति होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलनी चाहिए। सम्मान एक है, आप उनके इनकम को डबल करने से जिनके पास पैसा ज्यादा है उनको थोड़ा सम्मान मिलता है, वो तो है ही। लेकिन केवल उतना है क्या? केवल उतना नहीं है। बहुत रिच फार्मर्स हैं, सोशल स्टेटस फार्मर को क्या है, यह प्रश्न है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को हो सकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर को हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट जो फार्मर है ना गांव में, वो राजनीति में जाता है तो उसको है, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। केवल कृषि करने वाले व्यक्ति, उसके बाद 25 एकड़ है, 50 एकड़ है, तो भी सामाजिक प्रतिष्ठा है क्या? मैं आपको एक विदर्भ के हमारे एक मित्र के जीवन के उदाहरण बताता हूं। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन लिए, वो घर में जाकर कृषि करना प्रारंभ किया। वो बड़े एक तहसील केंद्र में, जिला केंद्र हो गया अभी, उसमें वो रहता था, गांव में कृषि के लिए जाता था। वो पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर। थोड़ा दिन के बाद मैं एक बार उनके घर गया तो उन्होंने घर के सामने ग्लास का एक ऑफिस बनाया है, जैसे बाकी ऑफिस होते हैं, ग्लास वगैरह रखकर ऑफिस बनाया। उसके सामने उन्होंने नाम बनाया, जयंत उत्तरवारकर, MBA, एग्रीकल्चरिस्ट। मैंने कहा ये ऑफिस क्यों, क्या करने वाले हो? नहीं, ये ऑफिस लेने से लोगों को लगता है मैं भी बड़ा आदमी हूं। तो तुम क्या करते हो? मैं तो किसान हूं। तो उन्होंने एक अनुभव बताया। यहां जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शांति समिति, ये वो सब बनाते हैं, सबको भेजते हैं। वो 15 अगस्त के कार्यक्रम भेजते हैं, वो डॉक्टर को भेजते हैं, एडवोकेट को इनविटेशन भेजते हैं, सबको भेजते हैं, मुझे नहीं भेजते। एक किसान को सरकारी अफसर भी इनको किसी सरकारी कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, ऐसे नहीं लगता। एडवोकेट को भेजेंगे, कॉलेज प्रिंसिपल को भेजेंगे। ये है सोशल प्रतिष्ठा जो है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा। इसमें उन्होंने कहा मैं ये ऑफिस बनाया ना, बोर्ड लगाया, उत्तरवारकर MBA एग्रीकल्चरिस्ट, क्लास का ऑफिस रखा है। मैं दिन में 1 घंटे यहां बैठता हूं और कुछ करता नहीं हूं, और बाकी तो किसान हूं मैं। अब लोग मुझे मानते हैं,
मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। मैं सोच में पड़ गया। किसान को एक है आर्थिक दृष्टि से उनके डबलिंग द इनकम जो होना चाहिए वो होना चाहिए। गारंटीड इनकम किसान को कई बार होते नहीं, वो सब वर्षा पर निर्भर है, मार्केटिंग पर निर्भर है, बाकी इस पर है, डिमांड एंड सप्लाई है, इस पर है। लेकिन अब प्रतिष्ठा भी ऐसे है, इस विषय के बारे में भी विचार करना चाहिए। दूसरे, कल हमारे मुख्य अतिथि मॉरिशस से हमने बुलाया था, बहुत अच्छी बात। मॉरिशस अपने देश के लोग वहां जाकर वहां कृषि करके उस देश को समृद्ध बनाने का बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां के कृषि मंत्री जो मूल से भारतीय मूल के हैं, उन्होंने जो विचार बताया, फूड सॉवरेंटी विसावी स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उन्होंने विस्तार से उसमें नहीं गए, लेकिन एक सच में कहना है तो उस विषय के बारे में हमें उनको ही कहना पड़ेगा, वो क्या चाहते थे कहने, विस्तार करें। लेकिन एक विषय उन्होंने इस सेमिनार में लाया, फूड सिक्योरिटी, फूड सॉवरेंटी एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस इन द वर्ल्ड। तो इस आयाम को विचार करने लायक विषय है, ऐसे मुझे लगता है। जो कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, स्मॉल होल्डिंग्स है, लागत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी है, सूचना तंत्र की कमी है, अवेयरनेस नहीं होता है। अग्रवाल जी ने कहा मैंने 10,000 कितने ट्रेनिंग किया है आपने? हाँ, हजारों ट्रेनिंग आपने किया है। फिर भी कल यहां विषय आया कि किसान को बहुत सारे विषय जो वैज्ञानिक करते हैं, बाकी होते हैं, सरकार की जो योजना होती है, पहुंचती नहीं है। तो इस गैप को कैसे हम भरें, इसको ठीक करना पड़ेगा। और आज सोदी जी ने जो एक विषय बताया, इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइस के जो लिंकेज है, उस संदर्भ में भी गंभीरता से विचार करने का है। विषय तो ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो बढ़ता है। लोगों को लगता है अन्न वस्त्र फूड एक कम दाम में मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, रोटी कपड़ा और मकान मौलिक आवश्यकता होने के कारण सबको मिलना है, तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए, उनके आमदनी के हिसाब से ही वो मिलना चाहिए। और जैसे ने कहा, जो कृषि का उद्देश्य है वो तो सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर द डाइट ऑफ ऑल फॉर हेल्दी लाइफ फॉर ऑल टाइम्स। एम आई राइट सर? सो इसलिए सभी के लिए, सभी के स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पर्याप्त तो सुरक्षित पौष्टिक खाद्यान्न उत्पाद करना, यह कृषि का उद्देश्य है। तो इस को बनाना है, लेकिन पौष्टिक सबके लिए मिलना है, तो उसका दाम नहीं बढ़ा सकते। दाम बढ़ गया तो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, या जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें सरकार के, कोऑपरेटिव्स के, बाकी लोगों की कुछ भूमिका है। इसलिए पीडीएस वगैरह वगैरह जो भी बनाए हैं अपने देश में, वो तो है ही, होना भी चाहिए। तो इसलिए गैप्स जो है, इस कारण से इसको ठीक करना, माल न्यूट्रिशन के कारण जो गैप है उसको ठीक करना, सभी के लिए खाद्यान्न आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मिले एक। लेकिन इस कारण से, उसके दाम कम होने से, किसान को जो मिलना चाहिए उसके लागत और बाकी चीजों के कारण, उसके अनसर्टेनिटी की अनिश्चितता के कारण बहुत बार जो नुकसान होता है वो कैसे होगा, उसके भरपाई कैसे, इस विषय के संदर्भ में कुछ बातें यहां उठाई गई हैं। उन विषयों के संदर्भ में आने वाले दिनों में और गहराई से और सार्थक चर्चा होकर इसके बारे में करना चाहिए। और बहुत ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हो गए अपने देश में जनसंख्या में। विजय पाल जी ने इस विषय को यहां उठाया था। किसी ने कहा यहां तो लेबर नहीं मिलते, तो इसका क्या है, उनको प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर भी दिया था। तो इसमें एक सच में कहना है तो जितने भूमि है, जितने प्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर होने से समस्या है। लेकिन जो उत्तर मिला, स्किल, एग्रो इंडस्ट्री, रूरल टेक्नोलॉजी, इन विषयों के संदर्भ में
थोड़ा सा अधिक ध्यान देकर हमारे टेक्नोलॉजी को, रूरल साइड के टेक्नोलॉजी को बन गया। भाई हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, एनसीआर है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट अभी तक हमारे कुछ मित्र हैं, मैंने कहा क्या करें साहब, इसको ना फंड मिलता है, ये इंस्टीट्यूट चलाना है कि नहीं चलाना है सरकार तय करे। नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एनसीआरए को प्रारंभ किया था हैदराबाद में, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत सारे ऐसे विषयों के संदर्भ में हमें और अधिक ध्यान देकर कृषि पर निर्भर होने वाले लोग, उनको कृषि क्षेत्र से संबंधित, ग्रामीण जीवन से संबंधित लोग जीवन के क्षेत्र में कैसे लाकर खड़े कर सकते हैं, देश का उत्पाद भी बढ़े, स्किल भी बढ़े, नगरी के तरफ वो माइग्रेट ना हो। क्योंकि आज जिस प्रकार से नगरीकरण हो रहा है भारत में, मोर देन 52% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन अर्बन एरियाज इन द लास्ट सेंसस। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भारत कृषियों का देश है, गांव का देश है, वो नहीं रहेगा 15 साल के बाद। जब भारत कृषि का देश नहीं रहेगा इस प्रकार से, या ग्रामीण देश नहीं रहेगा, अपनी संस्कृति सभ्यता जिसके बारे में हम इतने गर्व से कहते हैं, उस पर असर होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या है, तो कृषि को मजबूत करना, कृषि आधारित उद्योग को मजबूत करना और उससे संबंधित स्किल को डेवलपमेंट करते हुए अगली पीढ़ी को उसके रहने के लिए आकर्षण बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाना पड़ेगा देश के अंदर। तो इसकी आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। बाकी बहुत सारे विषयों के बारे में यहां आया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं भी घड़ी देख रहा हूं। एक है यहां महिला भागीदारी के बारे में उल्लेख आया, लेकिन इस सेमिनार में थोड़ा महिला भागीदारी बढ़ना चाहिए था, ऐसे मुझे लगा। वक्ताओं में भी कोई शायद नहीं मिले होंगे आपको, एक ही आई थी। तो क्योंकि देश के कृषि में, इन सारे में, वस्त्र के उद्योग में, हर किसी में देश के महिला सहभागिता बहुत बड़ा है, और महिला सहभागिता इन क्षेत्रों में बड़ा रहने से ही उस क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल्य ठीक रहता है, उसकी समग्रता ठीक रहती है, उसका संतुलन बना रहता है। इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। हार्नेसिंग द इंडियन एग्रीकल्चर फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, यह विषय था। भारत के लोग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं, विश्व के समृद्धि, क्योंकि यह स्वभाव है भारत के। समर्थ रामदास, छोटा बालक था नारायण, घर के अंदर बैठा था, भोजन के समय मां ने कहा नारायण भोजन के लिए आओ। एक बार दो बार कहने पर भी नहीं आया तो नारायण कर क्या रहे हो? तो नारायण कहता है, छोटा है, समर्थ रामदास बने बाद में, छोटा बालक था, उसने कहा विश्वा कर तो चिंता, विश्वा कर तो मां चिंता, चिंता कर तो मां विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं, विश्व की चिंता कर रहा हूं। तो इसलिए यहां के एक बालक भी सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसे सोचता है। जो बद्री जी ने कहा, भारत विश्वगुरु ज्ञान में बने, विश्व के लिए अन्नदाता बने। पूर्ण रूप से हम ही देंगे ऐसे नहीं है, जैसे कल बताया, अच्छी बातों से बाहर से भी लेंगे, लेकिन भारत एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास समृद्ध राष्ट्र बनना है तो कृषि को उस दृष्टि से समृद्ध बनाना आवश्यक है। और भारत के तरफ विश्व देख रहा है। अर्नल्ड टॉयनबी ने अपने इसमें यही कहा था, when at the age of, when the chapter that has started with a western beginning will have to have an eastern ending। जो आधुनिक का जीवन के अध्याय पश्चिम से प्रारंभ हुआ है, उसका समाप्ति ईस्ट यानी पूर्व के तरफ देखने से ही होगा। एंड एट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री,
इफ यू हैव टू नॉट एंड आवर सेल्फ इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हम अपने आत्म विनाश की तरफ नहीं जाना है, तो वी विल हैव टू लुक टू द इंडियन वे, द हिंदू वे। भारत के जो मार्ग है इस पर ही हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके विचार में, जीवन में संतुलन के, संयम के, समृद्धि के एक बहुत अच्छा मेल है, इसलिए उसके तरफ हमको जाना पड़ेगा। ऐसे आर्नल्ड टाइम जैसे एक महान इतिहासकार ने भी अपने उद्गार किया था, बद्री जी ने शायद उसी का अपने शब्दों में उन्होंने कहा। तो मैं, जैसे मैंने कहा, इस संगोष्ठी से मुझे सीखने को बहुत मिला और आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। कृषि के बारे में इतने लोग कार्य कर रहे हैं, और भी अधिक लोग करें, और भी अधिक लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े, भारत को और विश्व को समृद्ध और संपन्न बनाने में हम सब सफल हो, ऐसी कामना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्ता जी, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय श्री बद्री नारायण जी, आईसीएआर के टीजी माननीय श्री मोहापात्रा जी, आईसीआर के डीडीजी माननीय श्री आरसी अग्रवाल जी, इस आयोजन में जो पूरा कार्यक्रम जो बनाया वो हमारे माननीय श्री मकरन जी, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष माननीय श्री जलपति राव जी, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री दिनेश जी कुलकर्णी, और यहाँ आए हुए सभी हमारे सभी सम्माननीय वैज्ञानिक गण, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ये समापन हो उसके पहले मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जो जिन लोगों का योगदान रहा है, उनमें भारत के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, मॉरिशस के एग्रो इंडस्ट्री एवं फूड सिक्योरिटी के और कृषि मंत्री माननीय श्री मनीष जी गोबिंद, हमारे आईसीआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहापात्रा जी, डीडीजी अग्रवाल जी, हमारे माननीय AK सिंह जी, और यहाँ पर सभी हमारे और भी जो वैज्ञानिक गण यहाँ बैठे हुए, जिनका दिन रात जिन्होंने एक किया है, वो सभी वैज्ञानिक गण, यहाँ पर जो मीडिया ने जो सहयोग किया है वो पूरा मीडिया, इसके अलावा जो हमें जो ऑनलाइन पे जिन्होंने हमें इसमें सहयोग किया है, डॉक्टर रतनलाल जी, हमारे जो अन्य प्रकार से भी जो जिन्होंने सहयोग किया है वो एपिडा, नाबार्ड, नाफेड, अमूल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, इफ्री, IRRI, सभी यहाँ जो आए हुए सभी सम्मानीय डेलीगेट्स, सभी ने जो इसमें सहयोग किया है, और उसी के कारण से इतना बड़ा है कि ये कार्यक्रम 2 दिनी कार्यक्रम और ये सफल हो सका है। उनके प्रति मैं अपनी ओर से, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से, भारतीय किसान संघ की ओर से, और मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मातरम वंदे
मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नं पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिदान कराले कोटिकोटिभुजे धृतखर करवाले अबला के नो मायत बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारै प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की सभी हमें हाईटी में डाउन स्टेयर में सम्मिलित होंगे और इस बार कार्यक्रम की समापन होगी। वीआईपी अरेंजमेंट होता है। मैं माननीय अतिथि से निवेदन करूंगा, इधर आएंगे। डीडीजी साहब सर लोगों को भी अनुरोध है, कृपया।